السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ دوستو، رکوع سجود سیریز کے سلسلے کا لیکچر نمبر 34 ہے آج، اور اس لیکچر میں آپ سے میں سورہ القلم کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 44 تک پر بات کرنا چاہوں گا۔ لیکچر کی جانب بڑھنے سے پہلے آیت نمبر 42 کا مروجہ ترجمہ میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ جب یہ ترجمہ میں نے پڑھا تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لہٰذا ترجمہ میں نے سکرین پر لگایا ہے، غور کریں۔ اس میں لکھا ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو بریکٹ میں لکھا ہے کہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دوستو، کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کن کو بلایا جائے گا؟ کیا ہر ایک آدمی کو بلایا جائے گا یا پھر مخصوص ٹولہ ہے کوئی، اس کو بلایا جائے گا؟ نمبر 2، اس ترجمہ کو آپ نے پڑھ لیا ہے تو مجھے بتائیں، پنڈلی کس چیز سے بندھی ہوئی ہے؟ لوہے کی زنجیر سے، یا پھر رسی کے کسی ٹکڑے سے، یا پھر کسی اور چیز سے؟ اور پنڈلی کھول کر ہی سجدہ کیوں بھلا لفظ یکشفو کے معنی کھولنا سے متعلق کیسے ہو گئے، جبکہ یہ لفظ انکشاف کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے؟ مزید ایک اور دوسرے مترجم کا ترجمہ میں سکرین پر لگا رہا ہوں، غور کریں۔ اس نے لکھا ہے، جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ بریکٹ میں لکھا ہے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ دوستو، اس نے لکھا ہے پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ یہاں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اللہ کو ننگی پنڈلیاں زیادہ پسند ہیں؟ اور پردہ ہٹا ہٹا کر کیا ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ننگی پنڈلیوں کو؟ اور اگر یہ ترجمہ درست ہے تو پھر تو وہابی زیادہ نزدیک ہوئے، کیونکہ وہ پنڈلی ننگی کر کے یہ اپنا نماز والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، مزید میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دن جب پنڈلیاں ننگی کی جائیں گی کب آئے گا؟ کسی کو پتا ہے تو بتا کر میری معلومات میں اضافہ کریں۔ جبکہ ان دونوں مترجمین کا ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے بریکٹ میں سجدہ لکھا ہے، یعنی ان مترجمین کے مطابق یستطیعون کے معنی بھی سجدہ کرنا ہے، جبکہ اسی ٹرنک روٹ یعنی الجزع سے لفظ جب سورہ ال عمران کی آیت نمبر 97 میں بطور استطاع آتا ہے تو وہاں یہ لوگ معنی مالدار آدمی کے طور پر لیتے ہیں جو سعودیہ میں جا کر حج کرنے کی قابل ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ وہاں جائے اور یہ حج جو مروجہ والا ہے وہ کر سکے۔ باقی دونوں آیات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک میں مروجہ حج والا عقیدہ آیت پر ٹھونس دیا اور دوسری میں ان کو معنی درست لکھنے پڑ گئے، جبکہ سورہ القلم کی اس آیت میں السجودی یستطیعون کے معنی طے کر رہا ہے اور یہی اس کے اصل معنی ہیں۔ مزید اس کے معنی ہے قابلیت یا صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ جو سعودیہ میں جا رہے ہیں وہ تو کوئی بھی قابلیت نہیں رکھتے، نہ ہی ان میں کسی طرح کی صلاحیت ہے، بس پیسے کے نشے میں ڈوبے ہوئے وہاں جا رہے ہیں گناہ بخشوانے۔ جبکہ وہاں تو آپ دیکھیں بڑے بڑے مشہور و معروف ڈاکو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ، ان کے لیے اس عمارت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آج تک کسی غریب آدمی کے لیے اس کا دروازہ ہی نہیں کھلا ہے۔ یعنی کہ جو ان لوگوں کا، جس اللہ کو یہ لوگ مانتے ہیں، وہ ہے ہی مالداروں کو پسند کرتا ہے، غریب کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ لہذا میں جس خالق کائنات کو مانتا ہوں وہ الگ
उसका लेवल है। लिहाजा दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब हम इन आयात की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो सूरा अल कलम की आयत नंबर 35 से 44 तक। 35 में है कि अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन, क्या हम सलामती देने वाले अफराद को बना दें जराइम करने वाले अफराद की तरह। दोस्तों यहाँ आयत में मुजरिमीन की जिद में मुस्लिमीन आया है। मुजरिमीन जराइम पेश करने वाले, और इसका उलट बनेगा सलामती देने वाले, क्योंकि जुर्म करने वाला हमेशा नुकसान पहुंचाता है और दूसरा जो है उसका ऑपोजिट होता है, वो सलामती देने वाला होता है। मजीद हम अगली आयत 68 की 36 को देखते तो उसमें है मा लकुम कैफ तहकुमून, तुमको क्या है, तुम कैसे फैसले करते हो। अब यहाँ पर फैसलों का कहा जा रहा है, तुम्हारे फैसले जो है क्या उनसे मुजरिमीन जो हैं वो उनको तकवीयत मिल रही है या नहीं मिल रही, या फिर तुम्हारे फैसले जो है वो सलामती देने वाले हैं। ये यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो रही है। मजीद तुम कैसे फैसले कर रहे हो, ये तुम्हें पता है, उसके नताइज जो हैं वो बता रहे हैं कि जराइम पेश अफराद को फ़ायदा हो रहा है या फिर सलामती देने वाले बढ़ रहे हैं उससे। मजीद हम 68 की 37 को देखते हैं तो उसमें लिखा है अम लकुम किताबुन फ़ीही तदरुसून, क्या तुम्हारे लिए कोई किताब है इसके अंदर तुम पढ़ते पढ़ाते हो, यानी जो फैसले करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है उससे लेते हो, या फिर किताब से नहीं लेते अपने ही ज़हनों से घड़ लेते हो। मजीद ये अगली आयत में इसकी तफसील कर दी गई है, ये कहकर के 68 की 38 में इन्ना लकुम फ़ीही लमा तखय्यरून, हकीकतन तुम्हारे लिए इस किताब में यकीनन जो तुम पसंद करते हो, यानी किताब में वो है जो तुम पसंद करते हो। अब आप देखें जराइम पेशा अफराद जो हैं उनका जो हौसला अफजाई करने वाला है वो अपनी ही किताब है उसकी, उसमें से वो उनको तकवीयत दे रहा है, लेकिन जो सलामती देने वाले की किताब होगी वो सलामती वाले कवानीन को फॉलो कर रहा होगा। मजीद हम देखते हैं 68 की 39, तो उसमें लिखा है, मजीद इसकी वजाहत की गई है ये कह कर के अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगातुन इला यौमिल क़ियामती, क्या तुम्हारे लिए हम पर कोई इबलाग किया जाने वाला है अहदो पैमान पड़ाव डालने या स्टैंड लेने के लम्हे की तरफ। दोस्तों अब देखिए हम पर कोई अबलाग किया जाने वाला है तुम्हारे लिए, तो अबलाग तो किया जाने वाला है ही, क्योंकि जो पन्ने यानी औराक दिए उनमें अबलाग ही तो है, और अबलाग किया जाने वाला अहदो पैमान पड़ाव डालने या स्टैंड लेने के लम्हात की तरफ ले जाता है। मसलन आपने इबारत पढ़ी अल किताब में से, तो उस पर आपने पड़ाव डालना है। यौमिल क़ियामती, क़यामा कहते हैं स्टैंड लेना, पड़ाव डाल लेना। गोल वाला ताए सिर्फ इस वजह से लगाया गया क्योंकि पिछला जो बताया गया उसका खुलासा ये करेगा, और इसमें हर तरह का मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह का आ जाएगा। मजीद ये है कि तुम्हारे लिए हम पर कोई अबलाग किया जाने वाला अहदो पैमान पड़ाव डालने या स्टैंड लेने के लम्हात की तरफ है। अब स्टैंड लेने के जब लम्हात होंगे तो फिर उसमें क्या करना है और वो जो हुक्म है कहाँ से लेना है वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में, इन्ना लकुम लमा तहकुमून, हकीकतन जो तुम हुक्म करते हो, जो हुक्म करते हैं उस पर पड़ाव डालना, उस लम्हे जब हुक्म किया उस लम्हे को अल क़यामा कहा जाता है, ना कि मरने के बाद दोबारा जिंदा उठना। इस आयत में तो उस पर स्टे करना, उस पर रुकना, उस पर पड़ाव डालना क़यामा है। यहाँ पर अल के साथ क़यामा है, ये बता रहा है कि जो लोग कह रहे हैं वो नहीं है, यहाँ अल ख़ास क़यामा है। मजीद हम देखते हैं वो ख़ास क़यामा क्या है, तो जैसा मैंने कहा है कि आयत में ही लिखा है इन्ना लकुम लमा तहकुमून, हकीकतन जो तुम हुक्म करते हो, यही इस पर ही पड़ाव डालना ही क़यामा का वो लम्हा होगा।
इन्ना लकुम लमा तहकुमून, हकीकतन जो तुम हुक्म करते हो। दोस्तों, जो हुक्म करते हो उस पर अहदो पैमान को लेकर उस पर पड़ाव डाल के करते हो या उससे हट कर, और अगर तो उस पर पड़ाव डाल के करते हो तो वो वाले लम्हात हैं जो अल क़ियामत वाले हैं, वो हैं। और अगर उससे हटकर हो तो फिर अल क़ियामा वाले लम्हात नहीं है हाज़िर में। मज़ीद हम देखते हैं अगले वाली आयत 68 की 40, तो कहा जा रहा है सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, आप इनसे राय तलब करो कि इनका कौन है वो इसके साथ जिम्मेदारी उठाने वाला है। यहाँ पर हुम की ज़मीर पीछे आयतों में मुजरिमीन की तरफ है, उनसे कहा जा रहा है कि सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, आप इन मुजरिमीन से राय तलब करो कि इनका कौन है वो इसके साथ जिम्मेदारी उठाने वाला है भला, ये सवाल किया जा रहा है। मजीद ये कौन है मुजरिमीन जिनके साथ जिम्मेदारी उठाने वाले नहीं हैं या हो सकते हैं, वो अगले वाली आयत 68 की 41 में बताया गया है। अम लहुम शुरकाउ, हमारा अहदो पैमान जामन है या पॉलिथिज्म करने वाले इनके लिए जामन है। ये मुजरिमीन जो हैं इनके लिए जामन कौन है, हमारा अहदो पैमान या फिर ये पॉलिथिज्म करने वाले। पॉलिथिज्म कहते हैं एक तो हुक्म है रुबानी, अब उसके साथ दूसरों का हुक्म लगाकर पेश करना, जैसा कि हमारे यहाँ किया जाता है तारीखी कुतब, जिसको ये लोग हदीस की कुतब कहते हैं, उसमें जो लिखा हुआ होता है वो अल किताब की आयात के साथ लगाकर पेश किया जाता है और कहा जाता है ये देखो ये है जी असल, उस आयत में जो बात है वो यहाँ कही जा रही, लिहाजा ये माना जाएगा। तो क्या कर रहे होते पॉलिथिज्म कर रहे होते, उन्हीं के मुतल्लिक यहाँ पर मुजरिमीन है वो, उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है अम लहुम शुरकाउ, हमारा अहदो पैमान जामिन है या पॉलिथिज्म करने वाले इनके लिए जामिन है। अब आप देखें कि जामिन कौन है। अगर ये जामिन है तो उनको क्या चैलेंज किया जा रहा है, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कहकर के फलियातु बिशुरकाइहिम इन कानु सादिकीन, बस चाहिए कि वो अपने पॉलिथिज्म कराने वालों के साथ आए अगर वो सच्चाई रखने वाले थे। तो दोस्तों, सच्चाई रखने वाले हैं या कज़ाब वाले हैं, ये फैसला तब होगा जब हुक्म अप्लाई किया जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। अगर तो रिजल्ट फ़ायदेमंद आ रहा है तो ठीक है, अगर फ़ायदेमंद नहीं आ रहा तो फिर क्या है, वो अपने शुरेका जो हैं उनका हुक्म पेश किए हुए है जो कि मुजरिमीन का है, और मुजरिमीन जो है वो तबाही व बर्बादी देने वाले हैं। मज़ीद हम देखते हैं ये जो मिलावट करने वाले हैं, पॉलिथिज्म करने वाले, इनको जब बुलाया जाएगा तो क्या होगा, वो 68 की 42 में बताया गया, ये कह करके यौमा युक्शफु अन साकिम व, पॉलिथिज्म करने वाला ग्रोह वो एक जाविया के पहलू के इस लम्हे बेनकाब होता है। दोस्तों, बेनकाब कैसे होगा, ये उसी सूरत में है जब वो जो हुक्म किया गया है उसको देखा जाएगा और उसके जो रिजल्ट आएंगे उनको देखा जाएगा, तो बेनकाब खुद ही हो जाएंगे और बताया जाएगा। जब दोनों का मुआजना किया जाएगा तो लोग खुद फैसला कर लेंगे कि कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। मजीद जब ये बेनकाब होते हैं, और कैसे बेनकाब होते हैं पॉलिथिज्म करने और कराने वालों का ग्रोह, तो वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कहकर एक निशानी ये भी है उसकी, वयुदऊना इला सजूदी फला यस्ततिऊन, वो फर्माबरदारी या मानने की तरफ बुलाए जाते हैं तो पास वो सलाहियत नहीं रखते। यानी जब उनको कहा जाता है कि ये मानो जो हुक्म करना है मुजरिमीन को, तो वो उस तरफ आते ही नहीं हैं क्योंकि उनमें सलाहियत ही नहीं। अब आप देख लें, आप भी आयात रख रहे होते हैं आगे, लेकिन सामने वाला जो तारीख को मानने वाला वो आगे से अपनी रागनी सुना रहा होता है और मानता नहीं है।
यानी वो आयात जब पेश की जा रही तो सजदा ही नहीं कर रहा होता। सजदा के मानी मानना के, ना के माथा जमीन पर लगाना और कानों के पास हाथ रख के सुबहाना रब्बियल अला, सुबहाना रब्बियल अला, सुबहाना रब्बियल अला करना, ये नहीं है। ये तो कलमात जो पढ़ रहे होते हैं ये तो अल किताब में है ही नहीं, बल्कि उल्टा ये शिर्क कर रहे होते हैं। यही तो शुरका हैं इनके जिन्होंने ये बना के दिए हैं कलमात इनको, जबकि अल किताब में लिखा है आयतें जब इनके सामने आयतों का सबक रखा जाता है तो वो सजदा में गिर पड़ते हैं। इन्हीं के तराजुम में लिखा हुआ है ये बात। जबकि हम देखते हैं यहाँ पर तो वयुदऊना इला सजूदी फला यस्ततिऊन, फर्माबरदारी या मानने की तरफ बुलाए जाते हैं। यानी मुजरिमीन जो है जब उनको फर्माबरदारी या मानने की तरफ बुलाया जाता है तो वो इसकी सलाहियत ही नहीं रखते। वो और उनके जो पॉलिथिज्म कराने वाले हैं वो सलाहियत दोनों ही नहीं रखते हैं। मजीद हम देखते हैं तो अगले वाली आयत है, इनके साथ मसला क्या है, ये क्यों नहीं मान रहे, बताया गया है ये कह करके खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, जो सलाहियत नहीं रखते, इनकी जांचने की सलाहियतें लो लेवल वाली हैं या पस्ती वाली हैं। इसके बाद खुवारी इनको आने वाली है। जब वो नहीं मानते, जाहिर है मानेंगे तो अमल करेंगे ना, मानेंगे नहीं तो अमल कैसा। वो मुजरिमीन जो शुरका से लेकर अमल वो हुक्म कर रहे हैं तो खुवारी इनको आने वाली, क्योंकि जो हकीकत पर मबनी है वो नहीं मान रहे। अब देखें इनकी जांचने की सलाहियतें लो लेवल वाली हैं, यानी उनका एक लेवल बना हुआ है, उससे ऊपर वो आना ही नहीं चाह रहे, पस्ती वाली हैं। जब हकायक सामने रखो तो नहीं मान रहे, तो जब हकायक को नहीं मान रहे तो पस्ती मुकद्दर है, वो आने वाली है। मजीद हम देखते हैं इससे अगले वाले हिस्से में वो बताया गया है, वक़द कानू युदऊना इला सजूदी वहुम सालिमून, और तहकीक वो थे, वो दावत दिए जाते या वो बुलाए जाते हैं खास फरमाबरदारी या मानने की तरफ, और वो ठीक ठाक या हट्टे कट्टे हैं। यानी उनको बुलाया जाता है, वो हैं ठीक लेकिन आ नहीं रहे इधर। जब मानने लग जाएंगे तो यही सजदा है, ना कि माथा जमीन पर लगाना उनका सजदा है। दोस्तों हम मजीद देखते हैं इससे अगले वाली आए तो उसमें भी इनके कुछ हकायक बताए गए हैं। वो ये कहकर के 68 की 44 उसमें है, फजरनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, जो फर्माबरदारी या मानने की तरफ बुलाए जाते हैं लेकिन मानते या फर्माबरदारी नहीं कर पाते, बस तू मुझ पर छोड़ दे, और जो कोई इस खास बयानिया के साथ झूठ मंसूब करता हो। अब देखें जो मानते नहीं हैं वो झूठ मंसूब करते हैं खास हदीस के साथ। जैसा कि मैंने कहा पॉलिथिज्म करने वाला जो है या मुजरिमीन उनकी जो बात मानने वाले हैं वो क्या करते हैं, एक तो खास हदीस है, एक अपने जो शुरका यानी शराकतदारी कराने वाले हैं उनका लिखा हुआ साथ मिलाकर पेश करते हैं और वो कहते हैं ये असल है। तो क्या है, वो यही झूठ ही तो मंसूब कर रहे होते। वही बात यहाँ पर की गई है ये कह करके फजरनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, जो फर्माबरदारी या मानने की तरफ बुलाए जाते हैं लेकिन मानते या फर्माबरदारी नहीं कर पाते, बस तू मुझ पर छोड़ दे, और जो कोई वो इस खास बयानिया के साथ झूठ मंसूब करता है, यानी जो झूठ मंसूब करता है उसके मुतल्लिक भी कहा जा रहा है कि मुझ पर उसको छोड़ दे। जब वो छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। रिजल्ट ये कह करके सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, करीब है कि दर्जा बदर्जा इनको हम इसी जगह ले जाते हैं जहाँ से वो इल्म नहीं रखते हैं, यानी उनके पास इल्म नहीं है, वो उसी जगह ही चला जाता है लौट कर। आपने उनको बुलाना है, दावत देनी है, लेकिन वो नहीं मान रहे तो वो उसी तरफ ही चले जाएंगे। दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। यहाँ पर पता ये चला कि जो मुजरिमीन हैं और उनको शराकतदारी कराने वाले, पॉलिथिज्म कराने वाले, वो जो हैं वो सजदा नहीं कर पाते, और सजदा नहीं कर पाते यानी वो मानते नहीं हैं।
وہ جس کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے خاص حکم کی طرف، اس کو نہیں مانتے تو ان کا سجدہ نہیں، اگر مان لیں گے تو یہاں سجدہ ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ اس آیت میں کہیں نہیں جو پنڈلیاں ننگی کرنی یا ڈھانپنے کا کہیں ذکر نہیں ہے ہی نہیں، چونکہ ہمارے ہاں وہ مروجہ تراجم کو لے کر کہا گیا ہے، تو لہٰذا آپ خود دیکھیں پنڈلیاں ننگی جو جس دن ہوں گی، یہ پنڈلیاں ننگی تو آج بھی ہو رہی ہیں، لوگ جب بیٹھتے تو شلوار اوپر کھینچ لیتے، پنڈلی ننگی ہوگی، تو کیوں پھر وہ یوم نہیں ہے، یوم قیامہ کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ دوست جب بیٹھتے ہیں صوفہ پر یا چرپائی پہ یا کسی بھی جگہ، تو کیا شلوار اوپر کر کے پنڈلی ننگی نہیں ہوتی آپ کی؟ آپ خود سوچیں نا کہ پنڈلیاں ننگی کیا تک بنتا ہے۔ دوستو یہاں پر میں دوبارہ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جس آیت کے حصے کا پنڈلیاں ننگی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یوم یکشف عن ساق و پولیتھزم کرنے والا مجرمین کا گروہ وہ ایک زاویہ کے پہلو کے اس لمحے بے نقاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ جی پنڈلیاں ننگی کر لی، فلاں ہو گیا ڈھمکا ہو گیا، پنڈلیاں ننگی ہوگی تو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کا آخری حصہ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ پولیتھزم کرنے والے یا مجرمین کو فرما برداری یا ماننے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو پس وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی جو پولیتھزم کرنے والے ہیں یا جو مجرمین ہیں ان کو ماننے کی طرف، یعنی خاص حدیث سے جو حکم کیا جائے اس کی طرف ماننے کی طرف بلائے تو مانتے نہیں ہیں۔ جب مانتے نہیں ہیں تو سجدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ماننا کسی چیز کو اس کا سجدہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔